Uh, Good morning, students. In the previous classes, uh, in the sociology, we have studied about the regarding the social institutions, and now in various groups or the institutions we have studied, or particularly how the groups are classified and what the importance of the group, how the groups are formed, and we also studied that everyone in the societies, everyone in the society and every societies of the world, a person collectively associated with the groups. We can't, we don't have the existence without the group. Group is the association, and no existence without the group. We have now students. Uh, Group A we have studied. Now, in the classification of the group, in the last class, the one topic we have to be the cover, that was the primary group and the secondary group. We had to study the which group is the called the primary group and the secondary group. Students, we form the different types of the groups or now or on the basis of the traditional or a traditional methods, or on basis of the tradition and a small scale societies, we form the groups and the modern societies on the two types of the societies, basis of two types of the society: one modern society, and second traditional society and a small society. On that basis we now divide and classified the groups. Basically, traditional and small scale societies are having its own features and its own features and association. Now, in the traditional societies, we find that traditional society had its own feature, in which we see the members in the traditional group and the society, traditional groups, social groups, our members are very closed. These groups are the very small, and their members are very closely intimated together, and their everyday their everyday their activities, and every day they meet together, and they had their face to face interaction. जैसे आप सिंपल सा ले लो एग्जांपल, जैसे मैं गांव का दे रहा हूँ, विलेज का, where villagers now, they are the very small, their society is very small, very simple society, and every day, or they are very close, they live in a very closed manner, very closed, and every day, and the intimated together, and every day face to face they have their appearance. वो मिलते हैं every day face to face. गांव के जो लोग होते हैं every day उनका मिलना है face to face everywhere. They meet the, तो दिस काइंड ऑफ दी जो सोसाइटीज होता है या सोशल ग्रुप्स होते हैं, ऐसे सोशल ग्रुप्स या ऐसे सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या ग्रुपिंग होता है, इसको हम प्राइमरी ग्रुप से, दिस इज द कॉल्ड एज द प्राइमरी ग्रुप्स. सेकेंडली, सेकेंडरी ग्रुप्स, हम मॉडर्न और ट्रेडिशनल्स दो सोसाइटीज को हमने डिवाइड किया, तो हम मॉडर्न सोसाइटीज की तरफ. व्हाट काइंड ऑफ द ग्रुप्स होता है मॉडर्न सोसाइटी? आप शहर में हम लोग रहते हैं, आप इमेजिन करिए कि वी लिविंग इन द सिटीज और द बिग टाउन्स. सॉरी. तो यहाँ का जो रिलेशन है, वहाँ का गांव में क्या है? वेरी क्लोज. टाउन्स में क्या है कि द इम्पर्सनल, नॉट पर्सनल रिलेशन इज हियर, इम्पर्सनल रिलेशन होता है. सेकेंड, इंटीमेट नहीं. हियर इस सोसाइटी में पीपुल्स आर नॉट सो इंटीमेट, दे आर डिटैच्ड इच अदर.
आप देखिए सोसाइटी शहर में, बड़े बड़े फ्लैट्स में आप देखिए, चाहे शहर में देखिए कि बहुत इंटीमेसी नहीं, सभी ऑल आर इन कन्फाइंड विद इन them, not so interactions happen, and they are the detached each others, not intimated, और ना इनका जो इंटरेक्शंस होता है डिस्टेंट इंटरेक्शन होता है, इम्पर्सनल होता है, नॉट ऑन द डिटैच्ड होते हैं, एंड मोर ओवर डिस्टेंट इंटरेक्शन, डिस्टेंस इनका क्या है, क्लोज, इंटीमेटेड एंड फेस टू फेस। यहाँ पे इम्पर्सनल, डिटैच्ड एंड, ये रिलेशन होता है डिटेस्ट एंड डिस्टेंट इंटरेक्शंस होता है। क्लोज इंटरेक्शन नहीं होता है सिटीज में, सर हम उतना क्लोज इंटरेक्शंस नहीं है, डिस्टेंस है, एवरी वन इज बिजी एंड हैविंग द वेरी कमर्शियल एंड प्रोडक्टिव रिलेशंस, दे ओनली आस्क दोज who are required for them, and there is no any room for the emotion and for the sentiments, and the person's no values money and the commercial relations values। शहर में जो होता है पर्सन की कोई वैल्यूज नहीं होती है, ब्लड रिलेशंस की कुछ वैल्यूज नहीं होती। शहरों में आप देखिए तो पर्सनल से जो रिलेशंस हैं, जो हम शहर की जो सोसाइटी में बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि नाउ नो पर्सनल्स, दे आर इम्पर्सनल एंड डिटैच्ड, and moreover detached relations they had, and now we see here the two relationship happens here, two groups here are forming here, and moreover students, uh, we are uh, forming the two groups. Next day here we can see the further topics, we shall the more close, we shall we shall see here. Next, however, the complete contrast is probably not an accurate description। अगर हम देखें तो इस डिस्क्रिप्शन में एक कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट नहीं, कंप्लीट कंट्रास्ट नहीं होता, एक्यूरेसी नहीं होती, कभी कभी तो ये ये क्रॉस क्रिस क्रॉस होता है, दैट इज द, एंड मोर primary and secondary groups, further primary groups refers to the small group of the people connected by intimate or face to face association, I have already mentioned, and now person associated, the members are primary groups have sense of belongings, उसमें जो एक feelings होता है at the either at my face and together at, and the here is the प्राइमरी ग्रुप्स में मेंबर्स बिलोंगिंग्स एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल्स लें प्राइमरी ग्रुप्स में, इफ यू कैन हियर द फैमिली, विलेज एंड 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 ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स, और आर एग्जांपल्स ऑफ द प्राइमरी ग्रुप्स, फ्रेंड्स, villagers, villages and the family, they come under the primary groups. Now here in the secondary groups we can see about the secondary groups also. Secondary groups now marks as the include the large size, इसका जो साइज होता है प्राइमरी ग्रुप्स का, जो विलेज का जो साइज होता है, ये स्मॉलर साइज होता है, गांव छोटे होते हैं, इट इज द स्मॉलर, एंड द पीपल्स बहुत क्लोज और स्मॉलर सोसाइटी, एंड द ग्रुप्स आर द लार्जर साइज टाउन्स एंड लार्जर साइज, एंड मेंटेन्स द
फॉर्मल अभी रिलेशन जैसे, तो इनका रिलेशन जो टाउन्स का होता है सेकेंडरी ग्रुप में, इट इज द क्वाइट फॉर्मल रिलेशन। मैंने पहले भी कहा, मेंशंस किया कि इनका ये दे आर द जस्ट ए प्रोडक्टिव रिलेशंस ओनली दे सेट अप, दे मेक्स द प्रोडक्टिव रिलेशन। और इनका जो रिलेशन होता है इम्पर्सनल रिलेशन होता है, प्रोडक्टिव होता है, एंड द ओनली द इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन दे है सेकेंडरी, एंड द ये जस्ट सेकेंडरी ग्रुप्स के जो रिलेशन होते हैं गॉड गोल ओरिएंटेड होते हैं। वट एवर द रिलेशन इज दैट देयर मस्ट बी द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द बोथ साइड्स। अगर दो आदमी अगर साथ है, थ्री हैं या ये जो भी है, तो देयर मस्ट हैव देयर वेस्टेड इंटरेस्ट देयर एग्जिस्ट, देयर इंटरेस्ट एग्जिस्ट देयर एंड मोर। जैसे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट्स ऑफिसर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, and students association, and the now these are the example of secondary groups. Their relations is based completely on the interest and the goals. This is the now students, next we shall come to the our study of the three models, three community. What is the community? यहाँ पे हम डिफरेंस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस, ए वेरी बेसिक डिफरेंस है। आई विल मेंशन विथ यू कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिटी एंड कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है स्टूडेंट्स? फर्स्ट, कम्युनिटी रेफर्स एंड डिनोट्स टू द ह्यूमन रिलेशनशिप। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी भी एक ह्यूमन रिलेशनशिप है, बहुत लोगों का एक जस्ट रिलेटेड रिलेशनशिप है, रिलेटेड कम्युनिटी एक ग्रुप है, रिलेटेड है, लेकिन और ये क्या है? ग्रुप पर्सनल ग्रुप होता है कम्युनिटी का, लाइक द इट इज द पर्सनल ग्रुप, एंड ये भी दिस इज आल्सो लाइक द प्राइमरी ग्रुप की तरह ये भी इंटीमेटेड होता है कम्युनिटी। एंड थर्ड, enduring those those where those where a pure persons involved. Now those where a person involvement is considerable if not total, उसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है अपनी कम्युनिटी में कंसिडरेबल होता है, rather not so much intimating, no, ये एक कंसिडरेबल इन्वॉल्वमेंट उसका होता है कम्युनिटी के साथ। नॉट लाइक द सेकेंडरी में क्या है कि बिल्कुल एसिमिलेशन होता है, उसकी इंटीमेशन बहुत ही डीप होता है। लेकिन इन दिस एसोसिएशन में क्या होता है? एक पर्सनल होता है रिलेशन, इट इज राइट, इसके साथ साथ इंटीमेटेड भी होते हैं वो, लेकिन इंड्यूरिंग दोज वेयर पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन कंसिडरेबल इफ नॉट टोटल, कंसिडरेबल रूप से वो जुड़े होते हैं, टोटलिटी नहीं होती है उसमें, उसे एसोसिएशन में। एंड मोर ओवर एज इन द, जैसा कि जिस तरह से फैमिली इंटीमेटेड होता है, लाइक द आपका एक बहुत क्लोज फ्रेंड्स इंटीमेटेड होता है आपका, एंड योर क्लोज नीट ग्रुप्स जो आपका होता है, उस तरह की कम्युनिटी उतनी अटैच्ड, डीपली अटैच्ड नहीं होता है। तो ये एक माइन्यूट और एक बेसिक डिफरेंस है कम्युनिटी में और प्राइमरी ग्रुप्स में। प्राइमरी ग्रुप्स एंड कम्युनिटी में ये डिफरेंस है। कम्युनिटी में होता है सब एक, हम कह सकते हैं कि एक थोड़ी सी डिफरेंसेस के साथ ये लगभग फीचर्स ये देखने में उसी तरह होता है, लेकिन एक्चुअली उतना इंटीमेट नहीं होता जितना कि प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। और मोर ओवर कम्युनिटी में और भी जो फीचर्स इसके हैं कि सोसाइटी और एसोसिएशन, अब हम देखेंगे सेकंड टर्म जो आपको पढ़ना है वो सोसाइटी और एसोसिएशन। एसोसिएशन, व्हाट इज द डिफरेंस हियर? तो वी सी दैट कि नाउ सोसाइटी और एसोसिएशन, टर्म सोसाइटी या एसोसिएशन इटसेल्फ रेफर्स टू एवरीथिंग अपोजिट टू द कम्युनिटी इन पर्टिकुलर। कम्युनिटी से बिल्कुल ये अपोजिट होता है। कम्युनिटी टर्म है, उसका डिफिनेशन आपने देखा,
that resembles to the primary group or the secondary primary group. लेकिन community but the association quite different from community. कम्युनिटी क्या है कि ये रादर देन सेकेंडरी ग्रुप से रिजेंबल्स करता है। जैसे हम शहर के बारे में आपको ने बताया, बिग टाउन्स के जो सोशल एंड सोसाइटीज जो है उनके जो रिलेशंस जो बेस्ड होते हैं वो बिल्कुल रिजेंबल्स करते हैं किससे, एसोसिएशन से या सोसाइटी से। वो इंटीमेसी नहीं होता, दैट इंटीमेसी विच वी फाइंड इन द प्राइमरी ग्रुप एंड फाइंड इन द कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी से बिल्कुल एक अपोजिट वर्ड है। Or now more everything opposite to the community, particularly apparently impersonal association है या सोसाइटी। ये एसोसिएशन का जो ग्रुप होता है इम्पर्सनल होता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, रिलेशन इम्पर्सनल होता है। सेकेंड आपको मैंने कहा कि सुपरफिशियल ट्राइवियल्स होता है ये, इट्स हैज नो द एक्चुअल एग्जिस्टेंस। ये क्या हो सकता है, ये डिजॉल्व भी हो सकता है, डिस्पर्स भी हो सकता है एनी टाइम। लेकिन जो प्राइमरी रिलेशंस होते हैं इट कांट बी द डिजॉल्व और डिस्पर्स्ड। तो यहाँ पे सुपरफिशियल होता है, नॉट ट्राइवियल्स, नो सो वैल्यूड, सो वैल्यूड रिलेशंस नहीं होते हैं एसोसिएशन। एंड मोर ओवर ट्रांजिटरी होता है ये रिलेशनशिप ऑफ मॉडर्न अर्बन लाइफ। अर्बन लाइफ का रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटरी होता है, दैट इज द चेंजिंग, इसमें बदलाव होता रहता है। फेस टू आज जो रिलेशन है कल रिलेशन नहीं है टुमारो। तो ये ट्रांजिटरी होता है एसोसिएशन का रिलेशन, प्राइमरी ग्रुप की तरह एक कंसोलिडेटेड एंड क्लोज्ड और इंटीमेटेड नहीं होता। दैट इज द हियर आई हैव टू से। सेकेंडली फर्दर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिक्वायर्स ए मोर। जैसे आप हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, एक कमर्शियल बेल्ट में चले जाइए, इंडस्ट्रीज में, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एसोसिएशन बनाए जाते हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द, अपने इंटरेस्ट के लिए लेबर ग्रुप्स और लेबर्स एंड वर्कर्स दे फॉर्म देयर ओन एसोसिएशन। तो वेयर द इन द इंडस्ट्रीज नाउ, जो इंडस्ट्रीज में रिक्वायर्स है वहां मोर कैलकुलेटिंग और रैशनल और सेल्फ इंटरेस्टिंग अप्रोच टू वंस डीलिंग विथ अदर्स। वहां पे रैशनल रिलेशन होते हैं, कैलकुलेटिव्स, कि हमें हाउ मच आई विल गेट द प्रॉफिट विद द रिलेशन ऑफ दैट पर्सन, how much I will lose with the relation of that person. On that basis, calculation, on the rationality की basis relation established किए जाते हैं। Where and the commercial belt में जहाँ पे association बनाए जाते हैं या industries में, this is the we make contracts and moreover we make the contracts or agreements rather than getting the नो वन अनदर। इसमें क्या होता है कि हम प्राइमरी ग्रुप में एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एसोसिएशन में वी मेक कॉन्ट्रैक्ट्स, हम समझौता करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है और एग्रीमेंट करते हैं। दैट इज द रादर देन गेटिंग टू नो वन अनदर, बिना किसी के जाने हुए हम एग्रीमेंट्स करते हैं, रिटेन एग्रीमेंट्स, रिटेन गारंटी इज गिवन देयर। लेकिन प्राइमरी में ऐसा नहीं होता। हम अपने गोल्स के लिए या अपनी प्रॉफिट्स एंड सम दैट द अदर साइड, दोनों के रिलेशंस कैसे होते हैं, वो एग्रीमेंट पर, एग्रीमेंट बेस्ड रिलेशंस होते हैं। वो इंटरेस्ट बेस्ड गोल बेस्ड रिलेशन होता है, जिसका हम क्लोजेस कैसे लाते हैं, क्लोजेस नहीं होता लेकिन कैसे उसमें एक दूसरे से अटैच होते हैं बाय द एग्रीमेंट्स। दिस इज द next we see that the rather getting the know one another, community and primate side। अब मैंने पहले भी कहा कि जो community होता है वो प्राइमरी ग्रुप्स से रिजेंबल करता है, लगभग क्लोज्ड है, दोनों दोनों बिल्कुल क्लोज है, प्राइमरी या कम्युनिटी। सेकेंड अगर देखा जाए एसोसिएशन, तो एसोसिएशन इज वेरी लाइकली टू बी द सेकेंडरी ग्रुप्स, बिल्कुल सेकेंडरी ग्रुप्स की तरफ। नाउ फर्दर
अगर हम देखें, वी गो सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स ऑफ इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। तो ये भी ग्रुप है, वी फॉर्म द, तो जिस द ग्रुप्स इन विच वी मेक्स द सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, जिसमें हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स होता है, उसे हम इन ग्रुप्स कहते हैं। एंड दिस द सेंस ऑफ बिलोंगिंग मार्क एंड द इन ग्रुप, एंड दिस फीलिंग now separate us or the we from them or they। तो वी फीलिंग जो इन ग्रुप्स होता है उसमें वी फीलिंग होती है, जो आउट ग्रुप्स के लोग होते हैं उसे उसे हम क्या कहते हैं, वो दे फीलिंग्स होता है। और ये जो इन ग्रुप्स जो फॉर्म किए जाते हैं जो क्लोजली, जैसे आपका स्कूल, तो स्कूल्स आपके पर्टिकुलर नेम है स्कूल का और उस नाम से आप हैं, आप एसोसिएटेड हैं, तो उसमें इन ग्रुप्स हुआ। अगर वही दूसरी स्कूल्स का अगर चाइल्ड है या ग्रुप है तो वो आपका क्या हुआ, वो आउट ग्रुप्स में उसको हम काउंट। और दोनों, और कभी कभी इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग, सेंस ऑफ रिएक्शनरी और कॉन्फ्लिक्टिंग होता है कि वी फीलिंग वहां नहीं होती, दे वी। तो यहाँ पे एक फर्क होता है। तो ग्रुपिंग्स जो होते हैं, इन ग्रुप्स जो क्लोज होते हैं आपके इन ग्रुप्स फीलिंग्स में आते हैं, और जो क्लोज नहीं होते हैं वो दे आर द आउट ग्रुप्स फीलिंग, या उनका कोई अलग एसोसिएशन है। जैसे हियर इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स। फर्दर अगर हम देखें, इफ यू सी दैट कि कम्युनिटीज, नेक्स्ट वी हैव टू द रेफरेंस ग्रुप्स। अब हमारा आता है स्टडी का कि वी शैल सी हियर द रेफरेंस ग्रुप। द रेफरेंस ग्रुप्स इज द फर्स्ट। हम रेफरेंस ग्रुप्स कहेंगे किसको, फर्स्ट देखो बहुत अच्छे से समझिए इसको कि रेफरेंस ग्रुप से इज दैट ग्रुप द इफ द लोअर क्लास, अच्छे समझिए, इफ द लोअर क्लास intimate and follow the lifestyle and the way of living of the higher classes। अगर लोअर क्लास के लोग and community and the person follows the way of the life, the excellence way of the life of the higher class, and try to intimate and imitate try to imitate and try to be look so this kind of the efforts is called as the reference। this kind of the imitation हुआ। अदर और रेफरेंस ग्रुप्स कौन है कि those person those people whose lifestyle, their cultures, way of livings are imitated or followed by the downtrodden people। उन लोगों की जो downtrodden people हैं वो उनके वे ऑफ लिविंग का, उनके हाई स्टैंडर्ड्स का, उसे अगर फॉलो करते हैं तो दैट कैन बी द कॉल्ड एज द रेफरेंस ग्रुप। वो रेफरेंस ग्रुप है जिनको हम इमिटेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल, आप नाउ द एक्टर्स हैं, बहुत से बॉलीवुड में एक्टर्स हैं जिनको इमिटेट करते हैं। मेनी स्टूडेंट्स और बहुत से बच्चे हैं या यूथ्स हैं वो उसको उनके इमिटेट करते हैं, उसके लाइफ स्टाइल्स को, या उनके वे ऑफ लिविंग, उनके हेयर स्टाइल या उनके जो ड्रेसेस हैं उनको वो बिल्कुल इमिटेट करते हैं। तो रेफरेंस ग्रुप कौन हुआ, दो एक्टर्स, उनका वे ऑफ लिविंग हाई होता है और वो एंड दे आर द लाइफ स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं। और तो उसे अगर कोई डाउन ट्रोडेंस पर्सन या लो कैटेगरीज के लोग अगर उसको भी फॉलो करते हैं, कई तरह के बड़े लोग भी फॉलो करते हैं, एवरीवन, तो वो
वो उसके लिए रेफरेंस ग्रुप। फर्दर फॉर वी कैन सी नाउ for any group or the people, there are always other groups whom they look up. हर कैटेगरीज के लिए, सोसाइटीज के लिए ऐसे लोग होते हैं कि वो जिसे वो हम लुक अप, उसे हम हाई देखते हैं। वी सी द वे ऑफ, अगर बॉलीवुड के एक्टर हैं या एक्ट्रेसेस हैं जिनको फॉलो किया जाता है, तो वो उनके लाइफ क्या फॉलो किया जाता है, वो स्टाइल्स फॉलो करते हैं। उनके जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स लेकर वो आते हैं एवरी डे इन अ डिफरेंट फॉर्म, तो वो एक स्टाइल जो पसंद किया जाता है, जो प्रिफर्स किया जाता है, और उस स्टाइल्स को लोग फॉलो करने लगते हैं। तो ये क्या है, लुक अप टू एंड द एस्पायर टू बी लाइक, और उस तरह से कोई सम वांट्स टू बी द लुक एज द हीरो, एज द, बहुत से बॉलीवुड्स के जो नाम है आप जानते हैं ऑलरेडी। तो उस तरह से दिखना, उनकी तरह से दिखने की जो एस्पिरेशन होता है, अंडरस्टैंड, तो ये एक रेफरेंस होता है। रेफरेंस ग्रुप्स हमारे उनके लिए कौन है, रेफरेंस ग्रुप्स बॉलीवुड्स के एक्टर, जिनको वो इंटीमेट, आप चाहे कोई भी, एनीवन, अंडरस्टैंड। तो हियर हु आर द रेफरेंस ग्रुप, द ग्रुप्स हुज लाइफ स्टाइल, कौन रेफरेंस ग्रुप्स है यहाँ पे, तो हुज देयर लाइफ स्टाइल्स आर, लाइफस्टाइल्स आर और इम्यूलेटेड और नोन एज द रेफरेंस, इनके लाइफ स्टाइल्स क्या है, फॉलो किया जाता है, मिटिगेट किया जाता है, या उनके लाइफ स्टाइल्स को वो कॉपी की जाती है। तो दे आर द रेफरेंस ग्रुप्स, एंड मोर ओवर वी डोंट बिलोंग टू आवर रेफरेंस ग्रुप, और हम रेफरेंस ग्रुप से नहीं बिलोंग करते, बट वी डू आइडेंटिफाई आवर सेल्फ विथ दैट ग्रुप। हम क्या करते हैं, हम बिलोंग नहीं करते हैं, वी डोंट बिलोंग टू द रेफरेंस ग्रुप। आप बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस से बिलोंग नहीं करते, लेकिन वी, यू नाउ योर सेल्फ ट्राई टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, try to look yourself like the Bollywood actor or actress. That is the, with that group, आप उस ग्रुप के, बॉलीवुड ग्रुप्स की तरह, like that you want to be the seen and the want to be the appear, understand. So this is the group. Reference groups are important source of information. Reference groups क्या है, ये important source है, वो एक लीडिंग ग्रुप है, एक लीडिंग ग्रुप है जिसको हम या कॉमन मैन उसको फॉलो करता है। लीडिंग ग्रुप्स और क्या फॉलो करते हैं, व्हाट द मैटर्स, व्हाट द थिंग्स दे फॉलो, फॉलो करने में जैसे उनके कल्चर्स, व्हाट काइंड ऑफ द ड्रेसेस दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ द स्टाइल्स, टॉकिंग वे ऑफ द वॉकिंग एंड द वे ऑफ द एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, इज ऑल कल्चर्स, उनके लाइफ स्टाइल्स फॉलो करते हैं। एंड मोर ओवर एस्पिरेशन एंड गोल अटेनमेंट्स, उनके क्या एस्पिरेशन है, गोल अटेनमेंट्स क्या है, गोल अटेनमेंट्स यानी कि उस तरह का बनना या अटेंड करना, दिस इज द फॉलोड फ्रॉम द रेफरेंस ग्रुप, से ये फॉलो किया जाता है और ये अचीव किया जाता है, दिस इज द। एंड मोर ओवर अगर हम देखें कॉलोनियल पीरियड्स में, अगर ये रेफरेंस ग्रुप या रेफरेंस ग्रुप जो है ये टाइम इमोरियल है, अगर हम देखें टाइम इमोरियल, लेकिन पहले क्या था, इट वाज द कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टिव, क्योंकि हमारी सोसाइटी क्या था कि कास्ट बेसिस पर हमारी सोसाइटी, वहाँ नाउ रेफरेंस ग्रुप्स बनना, वहाँ क्या है, पनिशमेंट पाना। ऐसे मान लीजिए सपोज कि अगर कोई दलित या शूद्रास इन एंशियंट टाइम में या मेडिवल टाइम में, कोई शूद्रास क्लास, कोई दलित अगर इफ वांट टू फॉलो द ट्रेंड एंड द वे ऑफ लाइफ ऑफ द अपर क्लासेस, तो ही वाज टू बी व्हाट, ही वाज टू बी द सब्जेक्ट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट, ही वाज पनिश्ड। सिंपल एग्जांपल, अगर दलित वांट्स टू बी द हॉर्स राइडिंग,
घोड़े पर चढ़ता है, घोड़े पर वो बारात में या जो भी है, तो क्या होता है, दिस क्रिएट्स द स्टिल रिएक्शन, and somewhere we have in the news we can find in the modern age also, somewhere they are punished. How dare you? लेकिन आज the time and in the modern times had come by the advent of the British in India. So that's why the Dalit class, that's why the reference groups है now. तो colonial period से हम बात करते हैं कि colonial the British came in our country and advents happened और many middle class Indians, क्या हुआ ब्रिटिश के आने के बाद many middle class Indians aspire to behave like the proper Englishman. यहाँ इंडियन जैसे ब्रिटिश आए तो व्हाट हैपेंड, हम इंटीमेट करने लगे, व्हाट, हैट, टाई, पैंट, शर्ट, इंग्लिश स्पीकिंग, नाउ ईटिंग ऑन द टेबल। पहले नहीं कि जमीन पे बैठ के हम खाना खा रहे, नहीं, अब क्या है, हैट, टाई, बेल्ट, स्टाइल, ब्रिटिश स्टाइल, टॉकिंग on and the cigarette smokings. Now this kind of hunting, this became the way of. Now the Indians middle class particularly started imitating the British people here and British and Western style way of the styles. And now we have seen also that this uh, way, in this way it could be the seen the reference groups for the aspiring the सेक्शंस। तो यहाँ पे रेफरेंस ग्रुप, तो हमारे यहाँ हमारे सोशल स्ट्रक्चर में हम रेफरेंस ग्रुप्स नहीं बन सकते थे, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश जब आए, मॉडर्निटी स्टार्ट हुई और सिटीज इमर्ज हुए, मॉडर्न सिटीज जब बनने लगी, तो वहाँ पे जो मिडिल क्लास आया, सम रादर द एजुकेटेड क्लास, जो गैदरिंग हुआ, जैसे कलकत्ता है, बॉम्बे है, मद्रास है, जो प्रेसिडेंसीज है, टाउन्स थे जहाँ ब्रिटिश का सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ देयर द पीपुल फ्रॉम द remotest area gathered and migrate there for their seeking the jobs, and educational system began to develop. So these newly educated youths started the the imitating the British way of the life. British way of the life. The British way of the life now styles, the British style, Western's way of the life. Now this started, and moreover this process was now gender. लेकिन अब ये कहा जाए कि दिस प्रोसेस तो स्टार्ट हुआ, मॉडर्नाइजेशन का इमिटेट करना स्टार्ट किए, हम रेफरेंस ग्रुप्स हमारे लिए कौन हुए, ब्रिटिश हुए, और हम मिडिल क्लास क्या हुए, फॉलोअर्स हुए, हम इमुलेट करने लगे, हम उनकी नकल करने लगे. We started the mitigate, started mitigating them, understand, and follow them. बट यहाँ एक क्वेश्चन है कि was this gendered, क्या ये जेंडर्ड था, इमिटेशन तो ब्रिटिश से इमिटेट किया गया, ये जेंडर था, क्योंकि ब्रिटिश के आने के बाद हमारे सोसाइटी में या सोशल स्ट्रक्चर बहुत फास्ट तेज होना शुरू, बहुत तेजी से, और जो इंडिविजुअलिज्म के बाद, जैसे आप पढ़े हुए क्लास 10th में, एक नाउ पहले क्या था कि श्रवण कुमार, हमारे सोशल मैथोलॉजी का ये है कि श्रवण कुमार माना जाता था बच्चों को, या जो यूथ सोचा था, जो सन होता था, लाइक द श्रवण कुमार उसका इमेज हो, लेकिन बट इन द पिक्चर में आप वहां पे देखे होंगे डिपिक्शन में, क्लास 10th में एक जगह कि वन just a husband, on the husband's shoulders wife is perching on, and now that husband is now losing and now dragging his old mother, dragging his old mother, and her wife is perching on that. In other pictures you have seen that the wife is now playing on, wife is now
smoking, puffing the cigar, and husband is playing on veena. What a reverse attitudes now they begin to develop. It was a Western impact. I this through this pictures the now pictures the here the painters wanted to show the impact of the British here upon the India. तो यहाँ पे ब्रिटिश क्या थे कि वो हमारे रेफरेंस ग्रुप्स थे और हम उन्हें आज भी टुडे जो भी वेस्टर्न से आता है ब्लाइंडली here accepted blindly every day is changing the style lifestyle and dresses and hairstyle and everyday changes. तो यहाँ पे एक चीज मानना कि was this a changing and reference group process was a gendered, it had a different implication for men and women. Yes, ये gendered था. How? Men now example Indian men wanted to dress and dine like the British men. Indians peoples चाहते थे ब्रिटिश मैन की तरह ड्रेसिंग करना, डाइनिंग करना, एंड मेन बट वांटेड टू इंडियन वुमेन टू रिमेन द इंडियन इन देयर वेज. और ये चाहते थे हम तो ब्रिटिश मेल क्या चाहते थे, ये जेंडर था. मेल वांटेड टू बी द लुक लाइक द ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिश वे styles, and for their women they wanted their women to be the Indians women, but a little ways or aspire to be a bit like proper English woman. ये भी चाहते थे कि a bit like changed हो, complete change ना हो. She should not be the look like the British lady, but a little bit she should have changed like the British lady. Understand? So here it was a gendered. Man did not care about that he is the changing like the British man, but the wife no. It was the now not acceptable in the, and moreover, but beat like the English woman, but also not quite like her. वो चाहता था कि कंप्लीट हो, चेंज ना हो, ब्रिटिश लेडी ना दिखे. तो ये एक जेंडर था. यहाँ भी एक लाइक द थोड़ी सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया गया. नेक्स्ट है लास्ट हमारा जो ग्रुप है आई एम गोइंग टू मेंशन, ये है पीयर ग्रुप. तो पीयर ग्रुप वेरी शॉर्ट है, आई विल जस्ट सी हियर. दिस इज ए काइंड ऑफ प्राइमरी ग्रुप. पीयर ग्रुप क्या है? प्राइमरी ग्रुप यूजुअली फॉर्म बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम एज. अगर सेम, जैसे मान लो तुम्हारा क्लासमेट है तो तुम्हारा क्या है, वो पीयर ग्रुप है. उसके लिए वर्ड्स यूज होता है पीयर्स. तो आपका पीयर ग्रुप है एंड आइदर ऑफ द सिमिलर एज, जिसमें एक एज के जो स्टूडेंट हैं वो उसका पीयर एज. इसी तरह हु आर इन कॉमन प्रोफेशनल में अगर ग्रुप है तो भी उसका पीयर है. एंड नाउ द प्रेशर रेफर्स टू सोशल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वंस. और इसमें क्या है कि उसमें भी हम सोशल प्रेशर मानते हैं. पीयर ग्रुप बहुत अपना ग्रुप होता है. अगर क्लास में मान लीजिए पीयर ग्रुप्स है और उसके अकॉर्डिंगली आप नहीं चलते हो, नहीं काम करते क्लास के अकॉर्डिंगली, पीयर ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली, तो दैट विल द लीड द मच प्रेशर स्ट्रेन ऑन यू. तो वी लाइक द प्राइमरी ग्रुप को भी अगर हम नहीं फॉलो करते या प्राइमरी ग्रुप से हम डिटैच्ड होते हैं या प्राइमरी ग्रुप से हम थोड़ी भी अलग होते हैं, तो हम क्या है कि हम बहुत प्रेशर फील करते हैं. तो लाइक द पीयर ग्रुप या जो आपका होता है, जो हम या जो ऑक्यूपेशंस में आप हैं और एक साथ आपके फ्रेंड्स हैं, एक साथ टुगेदर आपके जो योर से जो फ्रेंड्स है, जो एक साथ आपके फ्रेंड्स हैं या ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के लोग हैं या कलीग्स हैं, अगर उसमें अगर आप नहीं एडजस्ट करते हैं या उनके साथ, तो क्या होता है वहां पे हम प्रेशर एंड कॉन्स्ट्रेंड फील करते हैं. तो पीयर ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्राइमरी ग्रुप की तरह है क्योंकि इसमें इंटीमेसी बहुत ज्यादा होती है. एंड मोर ओवर और द एंड प्रेशर एक्सर्टेड वन से पीयर ऑन व्हाट वन ऑट टू डू और नॉट. और ये हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये पीयर ग्रुप से हम
प्रेशराइज होके करते हैं, क्योंकि आपको चलना है पीयर ग्रुप्स के साथ। अपने हम ग्रुप जिसको हम कह सकते हैं, या पीयर ग्रुप जो हम उम्र का होता है, या एक एक वन काइंड ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ द ऑक्यूपेशंस द पीपल आर engaged in that. तो यू कुड हैव अंडरस्टैंड, यू आप समझ गए कि पीयर ग्रुप्स, तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ग्रुप वी आर गोइंग टू लर्न हियर। तो दैट दीज आर द वेरी बेसिक थिंग, आपको बहुत बेसिक चीजें अभी समझना है, नॉट इन द वेरी ब्रॉड एंड द, तो बेसिक चीजें, बेसिक वर्ड्स you have to be understanding this, understand? So students, today this is the much for today, and in the rest class the further topic we shall meet, and the further topic I will explain. Thank you very much for attending the class.